بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے میں ڈپریشن میں ڈوب رہا تھا، اسلام نے میری زندگی بدل دی۔ تو یہ آپ بہت باری اور بھی اس سے پہلی باری میں نے ویڈیو بنایا ہے اس چینل پہ، ٹورڈز ایٹرنیٹی۔ مجھے بہت پسند آتے ہیں ماشاءاللہ اس چینل کے جتنے ویڈیوز ہوتے ہیں، اور لوگ بھی مجھے سبسکرائبر بھی مجھے کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ ان کے چینل پہ ویڈیو ریاکشن دو۔ بہت ہی مطلب ایموشنل، چیلنجنگ اور لائف چینجنگ سٹوریز ہوتی ہیں ان کے، بہت اسلامک کنورٹ سٹوری، مطلب بہت ہی اچھے سٹوریز ہوتے ہیں ان کے۔ تو آپ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی، لاسٹ تک ویڈیو بنے رہنا۔ اور ہاں، آپ لوگ ویڈیوز بہت کم دیکھ رہے ہو، کمنٹس بھی نہیں کر رہے ہو آپ لوگ کہ مطلب میں کس پر بناؤں، ریاکشن دوں۔ آپ لوگ کمنٹ کیا کرو، ویڈیو کو دیکھا کرو۔ تو لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو پھر چلیے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ جس کے متعلق میں سوچتا رہتا تھا، مطلب میں اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا برو۔ وہ واقعی 24/7 میرے دماغ پر چھائی رہتی تھی۔ تو میں ہائی وے پر ڈرائیونگ کر رہا تھا 75-80 کی رفتار سے۔ پیر میں نے گراؤنڈ پر رکھ دیے، ہاتھ یہاں، اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 5 4 3 2 1۔ اور اس وقت میں نے محسوس کیا کہ مجھے زیادہ گہری اور معنی خیز چیز کی تلاش کرنی چاہیے۔ تو اب میں نے مختلف ازمز کی کتابوں سے مدد لینے کا ارادہ کیا۔ تو میں نے بدھزم کو پڑھا، ہندوازم کو پڑھا، تورات کو پڑھا، بائبل کو پڑھا، مگر یہ مجھے معقول نہیں لگی۔ میں نے قرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور اس سے پڑھنا شروع کر دیا۔ 20 منٹ گزر چکے ہیں، اور ٹھہرو ذرا، 1 سیکنڈ رکو۔ میں نے پچھلے 25 منٹ میں اس لڑکی کے متعلق بالکل نہیں سوچا۔ یہ تو حیرت انگیز بات ہے۔ اور پھر میرے سامنے یہ آیت آئی۔ اسے یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے میرا ذہن کیسے پڑھ لیا؟ اسے یہ کیسے معلوم ہوا؟ السلام علیکم برادر ریسکیو، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر انتہائی خوشی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ برادر ریسکیو کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے متعلق مختصراً بتا سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں یہی کہوں گا کہ میں برانکس کا ایک یتیم بچہ تھا، بالکل ایک عام سا لڑکا، نارمل سی شروعاتی زندگی تھی۔ زندگی میں بہت سی چیزوں سے گزرا، فیملی کے ساتھ، والد کے ساتھ، گھریلو تشدد، بدسلوکی۔ میں دراصل ایک پناہ گزین ہوں۔ لوگ در حقیقت یہ بات نہیں جانتے، کیونکہ میرے والد سبحان اللہ، میری والدہ میرے اور میری بہنوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ہم 2 ہی بھائی بہن تھے۔ ان کی بدسلوکی بڑھتی رہی، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہماری زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ ایک دن جب وہ سو رہے تھے تو ہم بھاگ نکلے۔ میں 10 ستمبر 2011 کو نیو یارک آ گیا 9/11 سے کچھ گھنٹے پہلے، اور میں 9/11 کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے میری زندگی بدل دی۔ مطلب اگر آپ گورے نہ ہوں اور آپ دوسروں سے ذرا مختلف ہوں تو پھر آپ نشانے پر ہیں، آپ کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے۔ جیسے مجھے اسکول کا پہلا دن یاد ہے، ہر کوئی کہنے لگا یہ بن لادن کہاں سے آ گیا؟ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ تو بچے تھے، انہیں وہی پتا تھا جو اپنے والدین سے سنا تھا یا جو خبروں میں آتا تھا۔ اس وقت اسلامو فوبیا زیادہ تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب بڑھ گیا ہے تو اس وقت کا آپ کو بالکل علم نہیں ہے، اور میرا تعلق اسلام سے تھا، تو وہ واقعہ میرے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا، جبکہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ مجھے ایسی چیز کا الزام دے رہے تھے جس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں تھا، رائٹ؟ میں اس سے منسوب ہونا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسلام اور دہشت گردی ایک ہی چیز کے 2 نام تھے۔ اسلام اور دہشت گردی ایک ہی چیز ہے، میرا یقین تھا۔ ہاں، مسلم دہشت گرد ہیں، حالانکہ میرا آپ یہی ایک خیال مسلمان تھا۔ تھے۔ ہاں، میرا یہی خیال تھا۔ تو بچپن میں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میں اسلام سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ تم کہاں سے ہو، میں انہیں یہ بتاتا کہ میں پورٹوریکن ہوں، یا یہ کہہ دیتا کہ ڈومینیکن ہوں یا میکسیکن ہوں، مگر پاکستانی ہوں یہ نہیں بتاتا۔ نیو یارک میں ہمارے اسکول میں میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے تھے، مجھے ان سے خوف آتا تھا۔ میں نے یقینی بنایا کہ میرے پاس کبھی کوئی ایسی چیز نہ رہے۔ کیوں؟ اگر بھی بچ گئی تو پھر سننے کو ملے گا، او اس کے پاس بم ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ یہ میرا نک نیم تھا، ٹیررسٹ میرا نک نیم تھا۔ آپ خود کو میری جگہ ایک 14 یا 15 سالہ لڑکے کی جگہ پر رکھیں، کیا تب آپ مسلمان رہنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مسلمان ہونا میرے لیے ایسی چیز بن گئی تھی جس نے میری خوشیاں چھین لی تھی۔ یہی میرے احساسات تھے۔ مسلمان ہونا میری زندگی مشکل بنا رہا تھا، میں اس سے دور رہنا چاہتا تھا۔
जो मेरा नफ्स मुझसे कहता मैं कर जाता था। अगर औरत की तलब होती तो मिल लेता, नशा चाहता तो कर लेता। शुरू में तो इसमें बहुत मजा आता था, मगर फिर तलब बढ़ती चली जाती है, और यही वो चीज थी जिसने मेरी जिंदगी में डिप्रेशन पैदा किया। मेरे डिप्रेशन ने मुझे बिल्कुल तबाह कर दिया, यहाँ तक कि मैं खुदकशी करने का सोचने लगा। यानी इस चीज ने मुझे इस्लाम से दूर, बहुत दूर कर दिया था। मेरी वालिदा सुभान अल्लाह जब चल रही होती थी तो मैं उन्हें आगे निकलने देता, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये मेरी वालिदा है। ये बुरी हरकत थी। मैं ये सब बातें फख्र से नहीं बता रहा, बल्कि उस वक्त के अपने एहसासात और हालात बता रहा हूँ। मेरी वालिदा मुझे बहुत मोहब्बत से पालती थी, क्योंकि मुझे याद है हम सरकश और जिद्दी टीनेजर हुआ करते थे। ये चीज़ हम में थी। और जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ ये जहालत और हराम है, जिनसे मेरी माँ को निमटना पड़ता था। जैसे मैं क्लब में होता तो मेरी माँ ही थी जो रात भर जाग कर गुजारती थी। जब आप घर पर ना आए लोगों को एहसास नहीं होता। वल्लाह अगर मैं जन्नत में गया तो माँ की वजह से जाऊंगा। मेरी माँ मेरे लिए दुआएं करती थी। उसने मेरे लिए दुआएं की। वो दुआएं करती थी कि या अल्लाह इसे हिदायत दे। और ये कोई रात भर का किस्सा नहीं, कि महीने भर की बात नहीं, इसमें कई साल लगे, इसमें वक्त लगा। पता है जब वो यहाँ आई थी उनके पास कोई बाकायदा तालीम वगैरह कुछ नहीं थी। वो गैस स्टेशंस वगैरह पर काम किया करती थी, लेट नाइट शिफ्ट्स में, रातों में, रातों में, जब बद से बदतर लोग वहाँ आते। काम करती हुई एक औरत और उसका बेटा उसे मजबूर करता था कि जो कुछ वो कमाती है उससे मेरी मर्जी की चीजें खरीदे। ये क्या चीज तुम मुझे दे रही हो? बच्चे हंसेंगे स्कूल में मेरे ऊपर। ये कैसे जूते हैं? ओ काश तुम पढ़ी लिखी होती। ये मुझे कैसी माँ मिल गई है? कुछ पढ़ी लिखी होती तो शायद हमें अच्छी तरह पाल लेती। तसव्वुर करें, लोग मुझसे पूछते तुम्हारी माँ क्या करती है, तो मुझे अपनी माँ पर शर्मिंदगी होती थी। शर्मिंदा होता था कि देखो वो क्या करती हैं, हमारे सरों पर छत भी नहीं दे सकती। आऊज़ु बिल्लाह, मैं किस किस्म का बेटा था। उन दिनों आपके सोचने का अंदाज कैसा था? क्या आप अपनी जिंदगी का तजुर्बा बयान कर सकते हैं? और क्या आप उस लाइफस्टाइल से वाकई खुश थे? आखिरकार मैं एक ऐसी औरत से मिला जो मेरे ख्याल में मेरी मनचाही थी, मगर मसला ये था कि उसका एक बॉयफ्रेंड था। मगर उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह उसे हिदायत दे और उस पर रहम करे। क्योंकि इसी चीज़ की वजह से मैं इस्लाम की तरफ आया, क्योंकि हमारा ताल्लुक ख़त्म होने के बाद मेरा दिल उसकी तरफ ज़्यादा माइल होने लगा और बहुत ज़्यादा लगाव पैदा हुआ। मैं सोचता कि इस लड़की के साथ ताल्लुक कब तक चलेगा, जब तक मेरा दिल उससे भर नहीं जाता ब्रो। और मुझे लगा कि इसे ख़त्म करना चाहिए। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़्म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अज़ीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौका को ज़ाया ना होने दें। जब तक मेरा दिल उससे भर नहीं जाता ब्रो, और मुझे लगा कि इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। फिर एक दिन मैंने उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और फिर मैं अपने मालिक की तरफ पलट आया, नशा करने लगा। एक बार फिर से लोग डिप्रेशन की दवाएं क्यों लेते हैं? मैं बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि आपके पास सब होता है, आपके पास सब होता है सिवाय अल्लाह के। असल में कुछ नहीं होता। आपको एहसास होता है कि आप खाली हाथ हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह नहीं होता। तो मैं हाईवे पर ड्राइविंग कर रहा था, तकरीबन 75-80 की रफ्तार से। पैर मैंने ग्राउंड पर रख दिए और हाथ बिल्कुल यहाँ पर, और अपनी आंखें बंद कर ली। 5 4 3 2 1। मैं भी जिंदा था। मुझे किसी हादसे की तमन्ना थी। मैं मुंतजिर था कि मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि मैं थक गया था। मैं कुछ नहीं चाहता था। आप इस डिप्रेशन से कैसे निकले? मुझे लगता है डिप्रेशन से निकलने तक मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं तवील अरसे से इसमें मुब्तला था। मुझे इस कैफियत का इंतहा पर जाना याद है, जब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मुझ में कोई खुशी बाकी नहीं रही थी, और मुझे वो वक्त पूरी तफसील से याद है। मैं शावर ले रहा था, मैं बाथटब में था, पानी गिर रहा था और मैं बाथटब में रोए जा रहा था। मैं रो रहा था। बाहर से अगर आप देखते तो, जैसे मैंने बताया, रुपए पैसे की कमी न थी, मेरे लिए औरतों की कमी भी नहीं थी। नशा, शराब, पार्टियां, शोहरत, मकबूलियत, हर वो चीज जो मैंने सोची और चाही थी। राइट ब्रो? मैं मकबूल होना, शोहरत पाना चाहता था। मैं पार्टियों की जान हुआ करता था। जब मैं दाखिल होता तो सब क्या उठते, यो वो आ गया, सब मुड़ के देखते। मैं उनमें मकबूल था। और यही शख्स अपने टॉयलेट में बैठा रो रहा है, अपने घर जाते हुए रो रहा है और खुदकशी करना चाहता है। यही वो लोग होते हैं जो किसी की खुदकशी का सुनकर कहते हैं, मगर मेरी अभी तो उससे बात हुई थी, बहुत खुश था वो।
क्योंकि कोई भी अपने खुदकशी के ख्यालात जाहिर नहीं करता, मगर शैतान आप पर काम कर रहा होता है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत अहम है कि आप खुद को कत्ल करते हैं। ये बहुत अहम है क्योंकि ये जहन्नुम का ज़बरदस्त VIP तेज़ रफ्तार फर्स्ट क्लास टिकट है। इसी तरह शैतान जीत हासिल करता है। तो मैं अपने बाथटब में बैठा रो रहा था। मेरी हालत बुरी थी और मैं मुसलसल रोए जा रहा था। फिर अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली कि मैं उससे दुआ करूं, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं दुआ कर रहा हूं। मैंने बस इतना कहा, अगर इससे आगे भी कुछ है तो फिर मुझे इस सूरत हाल से निकाल दो, अभी और इसी वक्त निकाल दो, और मुझे सही रास्ते के ऊपर डाल दो। ऐसा रास्ता जहां मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है। कोई रहनुमाई, कोई इशारा दे दो ताकि मुझे ये सब सहना ना पड़े। अगर नहीं तो इसे अभी ख़त्म कर दो। मैं अब इस तरह नहीं जीना चाहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस शावर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मैं बाहर आया और उसी वक्त अल्लाह ने मुझे हौसला दिया, मगर उस वक्त मुझे इसका इल्म नहीं था। अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि मैं पाकिस्तान का सफ़र करूं। मेरा ख़ानदान है वहाँ, तो क्यों ना वहाँ जाऊँ। ओके, बेहतरीन। मुझे पता चला कि मेरी वालिदा पाकिस्तान जाने वाली है, खुद अकेली। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चले प्लीज़। और उस वक्त मैंने महसूस किया कि मुझे ज़्यादा गहरी और माने खेज चीज़ की तलाश करनी चाहिए। तो अब मैंने मुख्तलिफ इज़्म्स की किताबों से मदद लेने का इरादा किया और सोचने लगा कि मैं अपने एहसासात के इस तूफ़ान से कैसे निमट सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता लगने लगा था कि ये नॉर्मल सूरत हाल नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। तो पहली किताब जिसे मैंने देखना शुरू किया तो उसका नाम था द सीक्रेट। इसमें मजहर, मस्बत एनर्जी, मस्बत थिंकिंग वगैरह था। राइट, यूनिवर्स, मेरी मदद करो यूनिवर्स, कायनात को पुकारना, अलामतें और इशारे देखना, हवा चलती है ये एक इशारा है, मतलब ये फजूल सी बातें। तो मैं जान गया कि इसमें खामियां हैं, क्योंकि उसे पढ़ने के बावजूद मेरा डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा था। उस औरत की सोचें मुझसे दूर नहीं हो रही थी, बल्कि वो मुसलसल आती और छाती रही, लिहाजा मुझे वो किताब छोड़नी पड़ी। फिर एक दिन मैं एक बुक स्टोर पे गया और मुझे बुद्धिज़्म पे ये किताब मिली। इसकी इब्तिदा बुद्धिज़्म के 7 उसूलों से होती है, खुशी के कवानीन और उस जैसी सारी चीज़ें। मैंने मराकबे की इन टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा मशक करने की कोशिश की, मगर ये कैसे हो सकता है कि आप आंखें बंद करें और इन तमाम सोचों से छुटकारा पाने की कोशिश करें, सांस पर और इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो रखते हुए, मगर सोचें ख़त्म नहीं हुई। ये तो अब भी तुम्हारे अंदर सरायत कर रही हैं। सिर्फ मस्बत सोचना काफ़ी नहीं है, इससे फ़ायदा नहीं हुआ। उस मौके पर मैंने बाइबल को भी चुना और वो तमाम जेनेसिस की किताबें भी पढ़नी शुरू कर दी। तो उन्हें पढ़ने के बावजूद मुझे ये खामियां नज़र आ रही थी, मगर इसके साथ साथ इनका मेरे दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे महसूस होने वाले डिप्रेशन से, उस औरत के ख्याल से मुझे दूर नहीं कर रही थी जो मेरी सोचों पर हावी थी। मैं उसे अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा था ब्रो, वो 24/7 हावी थी दिमाग पर। तब तक मैं थक चुका था, मैं बहुत थक चुका था। मैंने कहा कि ये सब फजूल बातें हैं, ये सब कुछ बुद्धिज़्म, ये मन घड़त है। लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं और मजहब सबका सब झूठ और फरेब है। मेरे दिमाग में ये बातें आ रही थी। तो उस वक्त तक मैं पाकिस्तान पहुंच चुका था और अचानक रमज़ान बस 2 दिन बाद आने वाला था। तब मेरी वालिदा मेरे पास आई और मुझे कहा, देखो रमज़ान शुरू होने वाला है और तुम रोज़े भी रखोगे, बस इसमें नमाज़ें पढ़ने की भी कोशिश करना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें सिर्फ भूखा प्यासा रखना नहीं चाहता, उसे इसकी ज़रूरत नहीं। नमाज को भी शामिल करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुम वाकई इसके सारे फ़ायदे पाना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। अब मुझे नमाज पढ़ना तो आती नहीं थी। मेरी वालिदा ने मुझे ये बातें कही और इनका मेरे दिल पर कुछ असर हुआ कि मैं आपकी तरह नमाज पढ़ूंगा। बहरहाल मैंने सोच लिया कि रोज़े में नमाज पढ़ूंगा। वो पहला रोज़ा था और मैंने अपने फ़ोन पर कुरान ऐप डाउनलोड की। मैंने किताब तक नहीं खरीदी, जैसे दूसरे लोग बुक स्टोर से ऐसी चीज़ें लेते हैं। मैंने सोचा ऐप ही डाउनलोड कर लेता हूँ और नमाज के बाद मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, बिल्कुल शुरू से। सूरतुल फातिहा शुरू में मैंने वैसे ही जायज़ा लिया, स्क्रॉलिंग करता रहा। अच्छा ये तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है शुरू कर देता हूँ। अल फातिहा से शुरू किया और उसे पढ़ा, सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि अरबी नहीं जानता था। बस पढ़ता गया, पढ़ता रहा। फिर अगले चैप्टर पे गया, सूरह बकरा, उसे पढ़ना शुरू किया। वाह, 20 मिनट गुजर चुके हैं। और ठहरो जरा, 1 सेकंड रुको। मैंने पिछले 25 मिनट में उस लड़की के मुताल्लिक बिल्कुल नहीं सोचा। ये तो हैरत अंगेज बात है। आप जरा समझे मेरे भाई, ये मेरे लिए इंकिशाफ था, वरना 5 मिनट भी ऐसे नहीं गुजरते थे कि वो लड़की मेरे दिमाग पर सवार ना हो, जो मेरे काम से मेरी तवज्जो फेर देती थी। मैंने सोचा जरा ठहरो, ये तो कमाल हो गया। और वल्लाह मैं कुरान को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, नाऊज़ु बिल्लाह, सिर्फ उस लड़की को भूलने और उसकी याद से पीछा छुड़ाने के लिए, अपनी तवज्जो बटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था।
कुरान इस्तेमाल करने का मेरा यही मकसद था। कुरान मेरे लिए मेरी एक्स का ख्याल भगाने का एक जरिया था बस। सिर्फ इसलिए पढ़ता था कि अपनी एक्स को भूल जाऊं। मेरा इसे पढ़ना ऐसा ही था जैसे तरकीब हाथ लग गई हो। इसे पाया तो तरकीब पा ली। उसी दौरान अजान भी हुआ करती, यानी वो नमाज का वक्त होता था। मैं नमाज पढ़ लेता क्योंकि मेरे ख्याल में पढ़नी चाहिए और मुझ में जोश बढ़ने लगा। मैं कुरान पढ़ता था। मैं सोचता आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी मैं कुरान नहीं पढ़ता था तो मेरा डिप्रेशन वापस आ जाता। मेरी एक्स फिर जहन पर सवार हो जाती थी। वो हर वक्त मेरे दिमाग पर छाई रहती और मुझ में फिर वही एहसासात पैदा होने लगते। मैं सोचता कि नहीं, मुझे कुरान पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो मैं बैठ जाता। लोग बातें कर रहे होते मगर मेरा उन पर ध्यान नहीं जाता। मैं बस कुरान पढ़ रहा होता, सिर्फ एक मकसद के लिए इसे पढ़ता रहता कि उस लड़की का ख्याल आए। इसका तर्जुमा राइट? मैं कुरान के तर्जुमे को सिर्फ अपनी एक्स को भुलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लिहाजा मैं पढ़ता रहा। मगर ऐसा करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था, क्योंकि मैं मुसलसल उसे पढ़ रहा था। राइट, बहरहाल मैं भी एक इंसान हूँ जो शऊर रखता है, जो थोड़ा बहुत समझ सकता है। राइट, और जो कुछ अल्लाह ने उस कुरान के तर्जुमे से, अंग्रेजी तर्जुमे से सिखाना चाहा, मैं कोई आयत पढ़ने लगता, उस आयत को पढ़ता और उसके बारे में सोचने लगता। ओह, इस बात से अल्लाह का क्या मतलब हो सकता है, इस आयत से क्या मतलब निकलता है। मैं सोचों में गुम हो जाता और जब मैं अपने फ़ोन की तरफ देखता तो वो ऑफ होता, उसका वॉलपेपर, स्क्रीन ऑफ होते। जब आप अपना फ़ोन काफ़ी देर तक यूं ही पड़ा रहने दें तो वो ऑफ हो जाता है। और मुझे याद है उस वक्त फ़ोन का आइडल टाइम 15 मिनट था, यानी मैं अपने ख्यालात में गुम हो जाता था। उस आयत पर गौर करता रहता 15 मिनट तक, और तब अपने फ़ोन को देखता तो स्क्रीन ब्लैक होती। मुझे दोबारा ऑन करके अपना पासवर्ड डालना पड़ता। मैं सोचता कि वाह, ये तो कमाल की मालूमात है। उस वक्त मुझे महसूस होने लगा था कि अगर कोई किताब वाकई खुदा की तरफ से है तो वो यही किताब है, मगर मुझे इस पर पूरा यकीन नहीं था। लिहाजा मैं इसे आजमाना चाहता था। औज़ुबिल्लाह, मगर मैं इसे आजमाना चाहता था। मैं कहता ओके, आज इसे आजमाऊंगा। आज मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, बस मौज मस्ती करूंगा। रोज़ा ज़रूर रखूंगा, मौज मस्ती के साथ, मगर इबादत नहीं करूंगा। मेरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, वल्लाह मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी ये सोचते हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे और मैं शावर लेने गया तो वो तमाम ख्यालात दोबारा मेरे अंदर उठने लगे। डिप्रेशन की वही लहर, उस लड़की के मुतालिक तमाम बातें मेरे दिमाग में आने लगी। मैंने शावर लेना बंद किया, अपना बदन साफ किया और ये किताब पढ़ने लगा। ये किताब चाबी है, ये किताब चाबी है। मैं उसे पढ़ रहा था और उसमें मजीद से मजीद तफसीलात आ रही थी और मैं सोच रहा था कि अल्लाह खुदा ताला ने किसी न किसी तरीके से ये किताब नाजिल की होगी, शायद रोशनी की सूरत में उतारी हो, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था और उन्हें 10 अहकामात दिए थे। मुझे इसका जरिया यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने का तसव्वुर नहीं मालूम था। मैंने सोचा कि ये खुदा की किताब है और वो हमें बातें बता रहा है और मैं इसे पढ़ रहा हूँ और ये मुझ पर असर कर रही है। और फिर मेरे सामने ये आयत आई और इस आयत ने वाकई मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के अंदाज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। इस आयत में कहा गया कि याद रखो कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही वो चीज़ है जिससे दिलों के इत्मीनान नसीब होता है। उसे पढ़ते ही मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने अपना फ़ोन बंद किया। मैंने कहा मुझे बंद करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वो क्या था। उसे ये कैसे मालूम? उसने इस तरह से मेरा जहन कैसे पढ़ लिया? उसे कैसे मालूम हुआ कि इससे मेरे दिल को इत्मीनान मिल रहा है? उसे कैसे मालूम हुआ? मैं तब एक नतीजे पर पहुंचा। मुझे नहीं पता ये कैसे नाजिल हुआ, मुझे इसके नाजिल होने के ज़राए नहीं मालूम, मैं इसके मुताल्लिक नहीं जानता, मगर ये खुदा का कलाम है, बिला शक व शुबा ये खुदा का ही कलाम है। तो अब रमज़ान ख़त्म होने वाला था, मेरा सफ़र भी ख़त्म होने वाला था, मुझे दोबारा न्यूयॉर्क जाना था, मुझे दोबारा सारी हकीकतों का सामना करना था। वहाँ कोई ढाल नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। मैं कुरान से इतना कुछ पढ़ चुका हूँ और मैं शराब के बारे में वो सब बातें जानता हूँ जो इसमें लिखी हैं, नशे के मुतालिक बातें जो लिखी हैं, जिना के मुतालिक जो बताया गया। और मैं सोचने लगा, एक सेकंड रुको, मुझे समझना चाहिए कि मैं 1.5 महीने के लिए पाकिस्तान आया था। मेरे सारे दोस्त मुझे वापस देखकर खुश होंगे। मेरे पहुँचते ही वो मुझे शराब पिलाने की कोशिश करेंगे, मुझे नशा करवाने की कोशिश करेंगे, वो मुझे औरतों में ले जाने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि पार्टी हो। और तब मैं सोचने लगा कि मुझे खुद से कुछ वादे करने होंगे। ओके, पहला वादा यह है कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये नमाज मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है, मगर इस नमाज में कोई ताकतवर चीज़ है। इसके बाद मैं कुरान पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। तर्जुमा, मैं इसे पढ़ना नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं डिप्रेशन से निकलने और उस लड़की को भुलाने में मदद देने वाली इन दोनों चीज़ों को आपस में लिंक कर चुका था। अल्लाह ने मेरी मदद की, नहीं पता था क्या करूंगा। वापसी पर लोग खुश होंगे, मुझे फन पर ले जाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें करेंगे। जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो यो तुम्हारी थकान उतारते हैं, चलो सिगरेट पीते हैं। मुझे पता है ब्रो, आओ आओ आओ, जाते ही कहेंगे यो घूंट लगाओ, वो जाम उड़ेलेंगे, सारी शराब 3 पर, 1 2 3। और मैं मैं नहीं पी सकता। वो कहेंगे तुमने अपना गिलास नहीं पिया, हाथ तक नहीं लगाया, रखवाली कर रहे हो, कब तक पकड़ कर बैठे रहोगे, पी जाओ, कम ऑन। मुझे नहीं पता मैं उन्हें कैसे बताऊंगा। मैं खुद को लूजर महसूस करूंगा, लेम महसूस करूंगा। गाइस, मैं मजीद नहीं पीने लगा, लिहाजा मैंने ये नहीं किया और कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
गाइस मेरा मैदा असल में अभी फ्लाइट से आया हूँ ना, इसलिए शायद तबीयत ठीक नहीं। ओके, दूसरी दफा जब मैं उनके साथ था तो यार सिगरेट पीते हैं, आओ चलो अभी चलो। गाइस मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है और इसी तरह के बहाने। ओके कूल। तीसरी बार उन्होंने बुलाना छोड़ दिया, उन्होंने बुलाना ही छोड़ दिया। मैं उन्हें बुरा और बोरिंग लगने लगा, मगर मेरा एक और दोस्त था, उसे मैंने सब कुछ सच बता दिया। मुझे याद है मैं कार में था, मैंने कहा ब्रो, उसने मुझसे पूछा था, दूसरों ने नहीं पूछा था, उसने पूछा था ब्रो मैं देख रहा हूँ कि तुमने शराब छोड़ दी है, औरतों के हवाले से भी तुम्हारा रवैया पहले से बदल गया है, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मैंने कहा ब्रो मैं इस्लाम के मुताल्लिक जान रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए अब ठीक नहीं है। वो कहने लगा वाकई, और मैंने सोचा कि अब मुझे उसके सामने बेपनाह शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, मगर मुझे हैरानी हुई कि वो इससे इम्प्रेस हुआ। मगर किसे पता कि जब आप ये बातें दूसरों को बताते हैं तो वो भी इस पर गौर करना शुरू कर दें कि मुझे इससे क्या हासिल हो रहा है। मतलब मैंने महसूस किया कि इन तमाम हराम चीज़ों पर पैसा खर्च होता है, तुम अल्लाह की नाराज़गी कमा रहे हो, उसकी नाराज़गी पर खर्च कर रहे हो। इससे सिर्फ जहन्नुम ही नहीं मिल रही बल्कि नशे पर, औरतों पर, वेब पर पैसा बर्बाद होता है। मगर दुआ मुफ्त है, नमाज मुफ्त है, राइट, तहज्जुद मुफ्त है, कुरान पढ़ना मुफ्त है, जिक्र मुफ्त है। कम ऑन, हम हराम के लिए खर्च कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की अदायगी कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इसका हल बिल्कुल मुफ्त रखा है। और यू नो वो अब भी मेरा दोस्त है, वो कहता है हम अब भी घूम फिर सकते हैं, तुम बस एक विंगमैन होगे, तुम हमारे ड्राइवर होगे और हम साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे और हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमें पता है तुम सही और अच्छे इंसान हो। मैंने कहा ठीक कूल, मैं भी घर पर रहकर क्या करूंगा? तो मैं भी उन जगहों पर जाने लगा, मैं फिर उन बार्स और क्लब्स में भी जाने लगा, मगर अब मैं कोई नशा नहीं करता था, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता था। मैं उन बार्स में, उन क्लब्स में जाता था, औज़ु बिल्लाह, मैं अब पीता पिलाता नहीं था, बल्कि मेरी हैसियत एक ड्राइवर की थी। और मैं उन सब लोगों को देखता और वो सब गंदगी के ढेर नजर आते, जैसे सारे हिप्नोटाइज्ड हों, जैसे सब किसी के इशारों पर चल रहे हों, वो सारे एक जैसा, गोया एक जैसा नजर आने की कोशिश कर रहे हों, और वो सब एक ही मकसद से वहाँ आते थे। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ खड़ा भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी जगह है। मैंने कहा ब्रो तुम लोग अपना काम करो, मैं बाहर जाकर इंतजार करूंगा, मैं यहाँ नहीं। अल्लाह ने इससे मेरा ऐसे दिल फेर दिया कि मुझे यहाँ खड़े रहना भी गवारा नहीं। तो मैं बार के बाहर बेंच पर बैठ गया, एक औरत आई और मेरे बराबर बैठ गई। वो वहाँ बैठी थी और उसके साथ मेरी भरपूर गुफ्तगू हुई। वो मुझसे बात कर रही थी और मैं उसे इस्लाम से मुताल्लिक़ बताने से रह न सका। मैंने कहा मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ और ये क़यामत के दिन के बारे में है, इसके बाद एक जन्नत मिलेगी और जब मर जाएंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, हम इन सारे मसाइल से निकल जाएंगे। वो बड़ी खूबसूरत जगह है और एक खालिक है और वो अकेला है और हम उसके पास लौट कर जाएंगे। उसने हमें ये ज़िंदगी दी है और वो हमें आजमाता है और इसी तरह की चीज़ें। और ये तमाम चीज़ें कैसे हैं और ये तमाम चीज़ें कैसे हमें हमारा असल मकसद और असल फितरत भुला सकती हैं। ये हमारी तवानाइयाँ छीन रही हैं, ये हमें हमारी बेहतरीन शख्सियत बनाने से रोक रही है। और फिर पता है क्या हुआ? वो रोने लगी। बार के बाहर वो औरत बार के बाहर रोना शुरू हो जाती है, कहने लगी खूबसूरत बात है। मैंने कहा राइट। कहने लगी मैं एक सवाल पूछती हूँ। मैं उससे पूरे वक्त बात करता रहा, पूरा वक्त इस्लाम के बारे में बोलता रहा। मुझे एक बात का जवाब दो। मैंने कहा कहें। कहने लगी तुम इस पर यकीन रखते हो सच? मैंने कहा हाँ। कहा फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता है मैंने क्या जवाब दिया? मुझे नहीं पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहने लगी तुम इस जगह अच्छे नहीं लगते, तुम्हारा ताल्लुक यहाँ से नहीं। और वो आखिरी मर्तबा था कि मैं बाहर गया और अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि तुम्हारे लिए वो जगह नहीं है। मैं बस घर जाना और कुरान पढ़ना चाहता था, बस इतना ही चाहता था। कुरान का तर्जुमा पढ़ना जारी रखना और उस एक्स का ख्याल छोड़ देना। जब इस तरह के लम्हात से मेरा सामना होने लगा तो मैंने पता है क्या महसूस किया। मेरी ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ तब्दीली का यहाँ पर ज़रूरत है। अगर मैं इस रास्ते पर रहना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो मेरी ही तरह सोचते हैं और इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। मुझे ऐसे लोगों का इल्म नहीं था, मगर जब मैंने मस्जिद जाना शुरू किया तो ऐसे लोगों से मिला जो मेरी तरह सोचते थे और ऐसी ही बातों पर यकीन रखते थे। मैंने सोचा वाह ये तो ज़बरदस्त हो गया, इन्हीं लोगों के साथ तो रहना चाहता था। तो मुख्तसर लेकिन भरपूर तफसील के साथ ये मेरी ज़िंदगी की कहानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे दिल और मेरी ज़िंदगी में इस्लाम लाया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे हलाकत से निकाला। और दुआ है कि अल्लाह इसी रास्ते पर चलाता रहे, क्योंकि दोबारा इन चीज़ों में पड़ जाना और शराब का नशा और सिगरेट की लत लगना और औरतों के जाल में आना बहुत आसान है। और जो कोई भी इस वक्त मेरी बात सुन रहा है, इस किस्म के दोस्तों और माहौल से दूर रहें, क्योंकि हमारे लिए इस जाहिलाना लाइफ स्टाइल में रहना बाइक चलाने जैसा है। हम बहुत तेज़ी से इस तरफ पलट सकते हैं
हमें अपना माहौल बदलना होगा, इस किस्म के लोगों से दूर हिजरत करनी होगी, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह 99 लोगों के कातिल ने हिजरत की थी और फिर उसने 100वें को भी कत्ल कर डाला था। और फिर एक आलिम से मशवरा मांगा, आलिम ने कहा कि अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा मगर तुम्हें हिजरत करनी होगी, इस माहौल से चले जाओ, एक ब्रांड न्यू लाइफ शुरू करो ऐसे लोगों के साथ जिन्हें तुम्हारे माजी का पता ना हो, जो तुम्हें इसकी याद न दिला सके। क्या हुआ ब्रो, तुमने शराब छोड़ दी, तुमने सिगरेट छोड़ दी? नहीं 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 नहीं, बस एक दफा आ जाओ ब्रो, आ जाओ, सिर्फ मेरे लिए आ जाओ। आपको इस जिंदगी से दूर होना पड़ेगा, सिर्फ इसी तरीके से आप इस माहौल से दूर हो सकते हैं। एक फ्रेश शुरुआत करें, अपने इरादों को बदलें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से ताल्लुक जोड़ें, खुद से कुछ वादे करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलट जाएं। और वल्लाह ये काम मुश्किल होगा मगर अल्लाह आसान बना देगा इंशाअल्लाह। तो इसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या बना? फिर आपने भरपूर अंदाज में दावा देना शुरू की। क्या आप हमें उन दिनों के जी। मुतालिक भी बता सकते हैं? जैसे आपके अपने पास मौजूद किसी चीज से इश्क हो तो आप उसके बारे में बात करते नहीं थकते, राइट? ये फितरी बात है कि हमें जब किसी चीज से मोहब्बत होती है तो हम उसकी रिसर्च करते हैं। ये हमारी फितरत में है कि जब किसी चीज को अहम जानते हैं तो उसकी मालूमात हासिल करते हैं, हर एक बात को खोजते हैं, हमें उससे मोहब्बत होती है। जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उसने ये मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। मुझे इससे मोहब्बत हो गई क्योंकि मैं जान गया था कि ये कितना प्रैक्टिकल और कितना असर अंगेज है। क्योंकि ज़ाती तौर पर इस्लाम ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, इसने मुझे दलदल से निकाला। कुरान के तर्जुमे ने, कुरान के पढ़ने ने इसने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। मैं अपने तजर्बे से जानता था कि ये कितना ताकतवर है और मुझे मालूम है कि कितने लोग डिप्रेशन का शिकार हैं जिन्हें जाने अनजाने में इस दवा की ज़रूरत है, उन्हें इस इलाज की ज़रूरत है। और अगर अल्लाह इसे सारी दुनिया तक पहुँचाने के लिए मुझसे काम ले ले तो ज़िंदगी का इससे बड़ा क्या मकसद होगा? अगर यही मकसद है तो अल्लाह मुझे इस्तेमाल कर ले, मुझ पर अपनी इनायतें जारी रखे और मुझसे ये दीन फैलाने का काम ले ले और इसे हर घर में दाखिल फरमा दे। इस हिदायत के रास्ते पर चलते हुए कितने साल हो गए? मेरा ख्याल है 12 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी तक बच्चा ही हूँ, मैं अभी भी 12 साल का हूँ, मगर हाँ 12 साल हो गए। कितने ही उतार चढ़ाव आए, आज भी आ रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन पर हैं, हम तौहीद पर हैं और यही सबसे अहम बात है। आप अब भी फिसल सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। एक ही रात में जाहिलियत के साल छोड़ देना आसान नहीं, आपको आजमाया जाएगा, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको माफ फरमा देगा। लिहाजा अगर आप भी इस जाहिलियत के फेज से गुजरे हैं तो आप फिसल सकते हैं, मगर अल्लाह आपको माफ फरमा देगा। शैतान आपको कायल करेगा, वो माफ नहीं करेगा। शैतान आपको कहेगा कि आपका खेल खत्म हो गया, कहेगा ब्रो तुम दोगले हो, तुम मुनाफिक हो। अल्लाह तौबा करने वाले गुनाहगार से मोहब्बत करता है, लिहाजा अल्लाह से तौबा करते रहो, वो आपको इससे पाक कर देगा। अपनी कहानी खुलूस के साथ हमसे शेयर करने का बहुत शुक्रिया। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, हमें आपकी कहानी से बहुत हौसला मिला है। अल्लाह आपको इन तमाम कामों का अजर दे जो आपने आपका भी बेहद शुक्रिया और तमाम देखने वालों का भी। अल्लाह आप सब पर अपना करम करे, अल्लाह ताला आप सबके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके चैनल को तरक्की दे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह बहुत ही इमोशनल स्टोरी, बहुत ही लाइफ चेंजिंग स्टोरी। कैसे वो शख्स मतलब डिप्रेशन में था, कैसे उसने कुरान को पढ़ा और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। मतलब कितना अच्छा लगा मुझे मैं ख़ुद को कोरिलेट कर पा रही थी इस स्टोरी से। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के, बहुत दिल को इत्मीनान मिला कि मतलब कितनी अच्छी बातें बता रहे थे वो कि आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, हराम चीज़ों में पैसे देते हो, बहुत सारे थिएटर जाते हो, क्लब जाते हो, बहुत सारी चीज़ों हराम चीज़ों में पैसे वेस्ट करते हो, वो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन हमें नमाज, हमें ज़िक्र, हमें कुरान सब कुछ मुफ्त में मिलता है, उसके कोई पैसे देने नहीं होते हैं। आप उनको करो, उनको फ्री में करो और देखो फिर आपको कितना सुकून मिलता है, आप डिप्रेशन से दूर हो जाओगे। आज के इस ज़माने में तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन एक समझो कि अब एक बीमारी बदलने वाली है, बीमारी में आने वाली है। मतलब हर कोई इंसान डिप्रेशन में है, एंटी साइकोसिस ले रहे हैं, मतलब डिप्रेसिव वाला मेडिसिन सारे ले रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह के ज़िक्र से दूर हैं, वो ज़िक्र नहीं करते हैं, बस अपने कामों में लगे, हराम की चीज़ों में लगे हुए हैं। तो हम अल्लाह का ज़िक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, तो बस इस्तग़फ़ार करें और अच्छे चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, अल्लाह के ज़िक्र में, नमाज में, तो हमें इंशाल्लाह डिप्रेशन नहीं होगा। तो मुझे बहुत ही माशाल्लाह, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी। आप लोग भी वीडियो देखें और देखा ही होगा आप लोगों ने। तो
तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। आजकल आप लोग मुझे नहीं कमेंट करके बताते हैं, ना पता नहीं इंटरेस्ट लगता आप लोगों का कम हो गया। फिर मैंने भी काफ़ी गैप ले लिया था बीच में 1 महीने का, तो उतना ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि आप लोग भी दुआ करें कि चैनल और अच्छे से ग्रो करे और लोग भी मेरे वीडियोस को देखें और कुछ सीखें, कुछ अच्छा सीखें, मैं भी सीखूँ इससे। तो फिर जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।